Good morning, students. I'm going to start with social infrastructure. I always used to revise the previous portion that you all know that. First, I used to ask questions, but now I'm not getting opportunity to ask you questions, isn't it? So I'm just repeating revising. Okay. What is social infrastructure? What is social infrastructure? Infrastructure means facilities, and social means just for the society. What are the facilities the government is giving? Understand? And this facility, social infrastructure, is very important for the human development and as well as for the human development as well as for the economic development and social development and economic development. Understand? So we can say that it refers to the mainly what we require for the social infrastructure means. What is the meaning that अपना मन में क्या आता है? Education, healthcare and family welfare. Understand? Sorry, when there is education is there, then अपना आप क्या होता है? When educational facilities will be there, we will get more and more employment opportunities, our income increases and healthcare take place, and uska baad when there is healthcare is there, then family welfare also is increasing. And when the family welfare increases through education and healthcare, what will happen to our development? Human development also will increase. When there is human development, what will happen to socio-economic development? Then socio-economic development will take place. Understand? So education plays an important role, or social infrastructure plays an important role in improving the people's lifestyle through improved education, skill and employment. And human development is not possible without social infrastructure. Social infrastructure का बिना human development is not possible, होता नहीं है. And human development index कौन introduce किया है? डॉक्टर महबूब अल हक. मैंने पहले भी बोला है, ये fill in the blanks में आएगा. Choose the correct option. It is very important. ठीक है? And after that हम लोग क्या? What are the features of social infrastructure? First is efficient resource utilization. When there is proper, when the government provide proper educational facilities, health facilities, etc., what will happen to the utilization of resources? There will be maximum efficient utilization of resources, and it will that is the first feature, efficient utilization of resources. You know that हम लोग already पढ़ चुका है, resources are scarce in India, isn't it? So efficient utilization is an important thing, and through social infrastructure we can achieve efficient utilization of resources. Second one is that productive efficiency. When government spend more and more money upon the social infrastructure, क्या होता है? अपना productive efficiency increase होता है, and through what? Sanitation, proper drainage facility, proper safe drinking water, etc., etc. What will happen? And proper nutritious food when we will get, but the death rate among the infants and the mother decreases, and the life expectancy increases. Expectancy of the life increases. Understand? Next one, better standard of living. Third feature is better standard of living. That means when the government provides social infrastructure through good educational facilities, what will happen? Employment increases, income increases, and their standard of living also increases. They will get a good quality of food, and their life expectancy bhi बढ़ जाता है. It increases. The fourth point is what? Quality of life. The quality of the life of the people also will increase through what? Proper good educational facilities, health facilities, and by increasing the employment level, etc., and the quality of the people increases. And after that, what we studied, role of education in India. Understand? So what is the role of education in India? Because education play an important role. Without education, you won't get a good employment and you won't get good income. Understand? So good education is very important. So क्या government क्या करता है to provide good education? First program government has introduced is what? Kothari Commission, that is educational policy, has introduced in the year 1982 under the chairmanship of S. Kothari, and he is the chairperson of Kothari Commission. उसका aims क्या था? To provide education for all, compulsory education up to the age group of 14 years, and vocational education. Vocational education means what? Technical education. And next one क्या है? Special education for women, special attention for women, weaker sections and minorities. मैंने last lecture already बता दिया. If we educate women, education of women is very, very important. Understand? When we educate a woman in a family, the whole family is educated. As a proverb है ऐसा. Understand? एक लड़की को education देगा ना, पूरा घर सुधर जाता है. So that's why the government always give importance to the education of women.
Followed. And weaker section, SC, ST, OBC, etc. and minorities, that is religious minorities. And the second one is what? Technical education. Technical education के लिए क्या किया गवर्नमेंट? बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे कॉलेजेस इंट्रोड्यूस्ड. फर्स्ट वन किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड देयर आर 6 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट. सेकंड वन 1671 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंट्रोड्यूस किया, मोर एंड मोर इंक्रीज कर दिया. 1292 पॉलिटेक्निक्स किया एंड 525 इंस्टीट्यूशन of diploma in pharmacy were introduced. 91 schools of hotel management and 1147 education institutions for MBA, 7 deemed to universities, 20 national institute of technology, etc. And third one is that planned expenditure. Government every year government spend a lot of money, lots and lots of money upon for the provision of educational facilities. During the 9th 5-year plan government कितना खर्च किया था? 24,908 crores. But now the finance minister, who is the finance minister, Nirmala Sitharaman, had already allocated किया कितना? rupees 94,000 crore for education, and it will increase, expected to increase about 5%. अपना टाइम के ऊपर वो बढ़ते जाएगा. And fourth one क्या है? Education is a fundamental right. Education को एक fundamental right करके declare किया, मतलब सबको मिलना चाहिए, compulsorily मिलना चाहिए. That is between the age group of 6 and 14 years. And next government स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया. कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम्स. टीचर एजुकेशन मतलब क्या है? अपार्ट फ्रॉम द आवर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का अलावा हम लोग को डीएड बीएड एक्सेट्रा इज देयर, दैट इज नोन एज टीचर एजुकेशन. मिड डे मील स्कीम इंट्रोड्यूस किया स्कूल में. एंड सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सबको शिक्षा मिलना चाहिए कंपल्सरली. नेक्स्ट वन नेशनल लिटरेसी मिशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1998. इसका एम क्या था? टू प्रोवाइड फंक्शनल लिटरेसी. सबको एक बेसिक लिटरेसी होना चाहिए, मतलब अपना नाम वगैरह लिखने के लिए आना चाहिए. दैट इज इलिटरेट को एजुकेशन देने लगा 15 साल से 35 इयर्स के बीच में, किसको भी देने लगा एजुकेशन, फंक्शनल literacy. That means अपना basic knowledge. Understand? Next one, national program for girls at elementary level to provide support to underprivileged girls. मतलब जो रूरल एरियाज में तो स्पेशली ट्राइबल एरियाज में सब गर्ल्स रहता है उनके लिए. नेक्स्ट वन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय फॉर द गर्ल्स के लिए, SC ST एंड OBC बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स दे दिया, गवर्नमेंट ने बना के दिया. एंड नेक्स्ट वन यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब पूरा एजुकेशन फैसिलिटीज यूनिवर्सल कर दिया, मतलब सबको मिलना चाहिए ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, अभी अपन एजुकेशन पूरा पढ़ के हो गया है. नाउ वी आर कमिंग टू दी हेल्थ, role of health. That is the second social infrastructure, role of health. And WHO defines health. What is health? Health मतलब क्या है? सिर्फ फिजिकली ठीक है वो नहीं है हेल्थ. हेल्थ ऑलवेज मीनिंग क्या है? फिजिकली भी होना चाहिए, मेंटली भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए. फिजिकली मतलब क्या? बीमारी कुछ भी नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंड वन मेंटल मतलब क्या है? मेंटल इंस्टेबिलिटी रहता है, कोई हंसने का टाइम रोते, रोने का टाइम हंसते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो नहीं होना चाहिए. माइंड बैलेंस होना चाहिए, बराबर. एंड सोशल मतलब क्या? किसी से बात नहीं करेगा, अकेला रहेगा, दैट इज सोशल इम्बैलेंस, मतलब प्रॉब्लम, सोशल हेल्थ प्रॉब्लम. ये तीनों नहीं होना चाहिए, तीनों अच्छा होना चाहिए, मतलब फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटली भी ठीक होना चाहिए एंड सोशली भी ठीक होना चाहिए. दैट इज नॉन एज हेल्थ अकॉर्डिंग टू हुम? अकॉर्डिंग टू WHO. ठीक है. और अमंग 195 कंट्रीज में अपना देश का हेल्थ केयर फैसिलिटीज में कौन सा पोजीशन है? 145th, 145 वो पोजीशन है. 195 कंट्रीज में अपने इंडिया का पोजीशन 145 है. एंड अमंग ऑल द कंट्रीज द वर्ल्ड में हु इज फर्स्ट? कौन सा कंट्री है फर्स्ट? फ्रांस इज द फर्स्ट वन इन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में फ्रांस है फर्स्ट पोजीशन में. इंडिया का पोजीशन क्या है? 145. अंडरस्टैंड? पहले कितना था इंडिया का पोजीशन? 153. नाउ व्हाट हैपेंड? 153 से कम हो गया. दैट मींस अपन अचीवमेंट हो गया किसमें? हेल्थ में. अंडरस्टैंड? अपना पोजीशन है 145. फ्रांस का पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन. अभी इंडिया का कंडीशन देखो. इंडिया में इतना सारे स्टेट्स है, उसमें कौन सा स्टेट में ज्यादा है? विच स्टेट इज आगे हेल्थ केयर में? गोवा एंड केरला. एंड कौन सा स्टेट्स पीछे? Means what are the states below? मतलब are the worst, एकदम bad. Assam and Uttar Pradesh. Understand? Assam and Uttar Pradesh. They are below. Their rank is only 40, and Kerala and Goa is the highest. Healthcare facilities are more in Kerala and Goa,
and less in Assam and Uttar Pradesh. Okay, now what are the government programs and policies? तो already मैंने क्या बताया, WHO क्या बता रहा है, what is the meaning of health? Health means what बच्चों? मतलब physical, mental and social stability. अंडरस्टैंड, फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटली भी ठीक होना चाहिए और सोशली भी ठीक होना चाहिए. एंड कौन सा कंट्री आगे हेल्थ केयर में इन द वर्ल्ड? फ्रांस. फ्रांस स्टैंड्स टॉप पोजीशन में एंड अपना पोजीशन क्या है? 145. एंड नाउ उसके बाद इंडिया में कौन सा स्टेट में ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज? गोवा एंड केरला. किसमें कम में? असम एंड उत्तर प्रदेश. नाउ वी हैव कम टू गवर्नमेंट programs and policies. The first program क्या था? The National Rural Health Care Mission. The National Rural Health Care Mission. It was introduced. कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया? अप्रैल 2005 में इंट्रोड्यूस किया. एंड कितना स्टेट्स है इसमें? 18 स्टेट्स. ओके, एंड इसका मेन फीचर्स क्या था? फर्स्ट वन क्या है? प्रोविजन ऑफ अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज. मतलब अफोर्डेबल, चीप फैसिलिटीज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा देने का, ऐसा नहीं होना चाहिए. चीप फैसिलिटीज होना चाहिए, प्राइस उसका कम रहना चाहिए एंड अवेलेबल भी होना चाहिए. अंडरस्टैंड, दैट इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन क्या है? टू ब्रिज द गैप इन द रूरल हेल्थ केयर सर्विस टू द क्रिएशन ऑफ आशा. आशा इज इंट्रोड्यूस्ड. आशा मतलब क्या? आशा लड़की का नाम नहीं है. आशा मीन्स एक इंस्टीट्यूशन है. अंडरस्टैंड, उसका नाम है. उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट. इसमें लोग काम करते हैं किसके लिए? रूरल हेल्थ केयर के लिए. रूरल एरियाज में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, उनका हेल्थ सुधारने के लिए द एक्टिविस्ट मतलब लोग जो भी इसमें अंडर में काम कर रहे हैं. अंडरस्टैंड, सो दैट इज आशा, फॉर्मेशन ऑफ आशा. थर्ड पॉइंट क्या था? टू इम्प्रूव हेल्थ केयर थ्रू पॉपुलेशन स्टेबिलाईजेशन. एज यू नो दैट जो भी प्रॉब्लम्स का इंडिया में, वो व्हाट एवर द प्रॉब्लम्स इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग, द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट? population. उसके बाद ही बाकी सब प्रॉब्लम्स आते हैं. अंडरस्टैंड, व्हेन वी कंट्रोल द पॉपुलेशन देन ओनली आवर हेल्थ केयर विल इंप्रूव. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ये जो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे, एक घर पे फैमिली ए, उसमें 2 ही बच्चे माँ बाप है, और फैमिली बी 10 बच्चे माँ बाप है. किसमें ज्यादा वेलफेयर रहेगा? कौन सा फैमिली अच्छे से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा? फैमिली नंबर ए, बिकॉज व्हाट? ओनली 2 चिल्ड्रन है, सो उनको देने के लिए होगा, फैमिली पेरेंट्स को गुड फैसिलिटीज देने के लिए होगा. बट वेयरएज 10 चिल्ड्रन है तो उधर नहीं होगा, सो उनका डेवलपमेंट नहीं होता है, सो उधर हेल्थ केयर नहीं रहेगा, फैमिली वेलफेयर नहीं होगा. सो मेन जड़ क्या है? पॉपुलेशन है. तो फर्स्ट वन इज दैट वी हैव टू इंप्रूव, वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, वी हैव टू स्टेबिलाइज. मतलब क्या? कंट्रोल द पॉपुलेशन रेट. दैट वाज द थर्ड एम. व्हाट किसका सजेशन है ये सब? किसका है? द नेशनल रूरल हेल्थ केयर मिशन का. अंडरस्टैंड. एंड द फोर्थ वन, लास्ट वन फीचर इज टू मेंटेन जेंडर बैलेंस. मतलब ऑलवेज मेंटेन ए जेंडर बैलेंस अमंग मेन एंड वीमेन. मतलब ऐसा नहीं कि मेन सुपर है और वीमेन नीचे रहने का, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी जेंडर इक्वालिटी. अंडरस्टैंड. सो दीज आर द 4 सजेशंस ऑफ NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. दैट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम. एंड द सेकंड इज दिस जननी सुरक्षा योजना. जननी मीन्स हु इज जननी? जननी का वर्ड से आपको पता चलेगा. हु इज जननी? मदर, माता. तो उनका सुरक्षा मतलब माता का सुरक्षा प्लान. तो ये क्या है? पहले जमाने में क्या करते थे मालूम है क्या? डिलीवरी के लिए घर पे लेडी आता था, ओल्ड लेडीज. शायद आप लोग पहले मूवीज में देखता रहेगा, एक ओल्ड लेडी विल कम, उसको आया बुलाते हैं. अंडरस्टैंड, फॉर द डिलीवरी के लिए. तो उस कारण में क्या हो जाता है ना, कभी भी डिलीवरी में इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन, व्हाट हैपेंस? ए लेडी कांट डू एनीथिंग. अंडरस्टैंड, ये ओल्ड लेडी क्या कर सकती है? तो उसके वजह से क्या होता है? नहीं तो माता मर जाता है, नहीं तो बच्चा. तो देयर इज नो प्रोटेक्शन ऑफ द मदर. अंडरस्टैंड, सुरक्षा नहीं है माँ को, तभी नहीं था. तो अभी आजकल क्या है? इसके लिए गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस किया है? जननी सुरक्षा योजना. टू प्रोवाइड किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी. मतलब इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी होने के लिए. इधर देखो, इंस्टीट्यूशन मतलब ऊपर लिखे डालो हॉस्पिटल्स. Understand? Hospitals, nursing homes, that is institutional delivery. Followed, ये डिलीवरी इधर होना चाहिए. आजकल ऐसा है. तो इसका वजह से क्या हुआ है? डेथ रेट, मैटरनल मोर्टालिटी में पहले भी बोला, मोर्टालिटी का मीनिंग है डेथ. तो मदर का डेथ रेट कम हो जाएगा.
अंडरस्टैंड, उसके लिए द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड जननी सुरक्षा योजना। और कोई कोई लेडीज रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में एजुकेशन नहीं रहता है, तो लेडीज क्या बोलेगा, नहीं नहीं हम हॉस्पिटल में नहीं आएगा, बच्चों को कोई किडनैप करेगा, नहीं तो मेरे को फैसिलिटीज बराबर नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज दे आर अनएजुकेटेड। सो व्हाट द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट वीमेन को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट कैश देने लगा। अंडरस्टैंड, कैश असिस्टेंस, मतलब if you come for the delivery hospital में, if you come then we will provide you cash help दे करेगा, and after the delivery also government will give money, cash मतलब money, अंडरस्टैंड। सो लोग आएगा, लेडीज, क्योंकि दे आर ऑलरेडी पुअर है, गरीब है, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के लिए वो लोग हॉस्पिटल्स में आएगा। इस तरफ से गवर्नमेंट हेल्थ केयर देने के लिए प्लान किया। थर्ड पॉइंट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। स्वास्थ्य मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वास्थ्य? मतलब हेल्थ। प्रधानमंत्री का हेल्थ सुरक्षा योजना, ये किसके लिए? टू रिमूव द रीजियनल इम्बैलेंस। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ओनली इन द अर्बन एरियाज एंड कंप्लीटली नेग्लेक्ट द रूरल एरियाज। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बोथ एरियाज should give importance. Government should provide the health facilities to both the areas equally. रूरल होने दो, अर्बन होने दो, इक्वल फैसिलिटीज होना चाहिए। दैट वाज द नेक्स्ट एम। नेक्स्ट वन, फोर्थ इज व्हाट? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। दैट वाज द फोर्थ वन। इसका मेन एम क्या था? टू फाइंड आउट नंबर ऑफ HIV केसेस इन इंडिया। कितना HIV केसेस है वो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन 1992 एंड टू कंट्रोल द HIV इन्फेक्शन। सो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकता है। फर्स्ट दे हैव टू फाइंड आउट the HIV infected cases, and to control them they can use the methods to control HIV infections. बराबर। अभी at present कितना लोग HIV cases in India? 2.1 million people are living with HIV in India. Understand बच्चों? तो पहला NRHM, सेकंड जननी सुरक्षा योजना, थर्ड क्या था? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, सुरक्षा योजना, फोर्थ वन एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एंड द नेक्स्ट वन इज फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट इज दैट? Fifth point, universal vaccination. That is, we can say Mission Indradhanush. It has introduced. Under this program, different vaccinations, vaccination और कुछ नहीं है, इसका मीनिंग है इंजेक्शन। ऊपर लिख के डालो, जिसका भी हार्ड वर्ड है ना बच्चों, उसमें पेंसिल से लिख के डालना जब भी नोट्स लिखने का टाइम, याद रखना, ठीक है? वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्शन। सो अंडर दिस प्रोग्राम डिफरेंट इंजेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फ्री। द गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव फ्री टू द चिल्ड्रन। किसके लिए? 12 लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। 12 लाइफ। आप देखा रहेगा, बच्चे जन्म होने के बाद उनके पास एक येलो कार्ड भी देता है, माँ का पास येलो एक कार्ड रहेगा, उसमें अलग अलग बीमारी का अलग अलग डेट रहेगा, ये डेट में आने का बच्चों को वैक्सीनेशन देना है, बच्चों को इंजेक्शन देना है। दैट इज यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड। मेरा ख्याल से कितना 1 ईयर तक तो कंटिन्यूस है इंजेक्शन का, 1 ईयर के बाद थोड़ा गैप है लगता है, फिर उसके बाद ऐसा येलो कार्ड रहता है। अंडरस्टैंड? तो वो इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट in order to protect the people from different diseases. Next, government has introduced pulse polio program. That is 6th point. Its main aim क्या है? To complete removal. Eradication मतलब ना बच्चों removal, निकालना, कंप्लीट रिमूवल। इरेडिकेशन के ऊपर लिखने का है, नोट्स लिखने का टाइम, रिमूवल, ठीक है, ऑफ पोलियो फ्रॉम इंडिया। पहले जमाने में बहुत सारे केसेस था, पोलियो केसेस, अंडरस्टैंड? अभी कम हुआ है। द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years वर कवर अंडर दिस प्रोग्राम। एवरी ईयर आता है ना बच्चों, घर पे आता है पूछने के लिए, बच्चे लोग है क्या 5 साल के नीचे, तो क्योंकि उनको पोलियो डोज देने के लिए। सो दैट वाज द 6th अटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट। किसके लिए? लोगों का हेल्थ improve करने के लिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड पल्स पोलियो प्रोग्राम। अगेन आई एम टेलिंग, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ का मीनिंग अकॉर्डिंग टू WHO क्या बताता है बच्चों? हेल्थ मीन्स 3 कंडीशन अच्छा होना चाहिए। व्हाट आर दे? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है? एंड व्हाट आर द प्रोग्राम्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड? एंड इंडिया का पोजीशन क्या है हेल्थ में? 145, एंड अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु इज द टॉप? फ्रांस इन द हेल्थ केयर। एंड आफ्टर दैट इंडिया में कौन कौन है आगे? कौन सा स्टेट आगे? 2 स्टेट, गोवा एंड केरला। और कौन सा स्टेट पीछे है? असम एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है? एंड नेक्स्ट भी व्हाट वी आर स्टडीइंग, व्हाट आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स? गवर्नमेंट क्या क्या प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया है? द फर्स्ट प्रोग्राम व्हाट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, द नेशनल
रूरल हेल्थ मिशन, उसमें आशा इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने. सेकंड वन क्या था, जननी सुरक्षा योजना, टू प्रोटेक्ट द मदर एंड टू रिड्यूस द डेथ रेट, मदर का डेथ रेट ड्यूरिंग द डिलीवरी केसेस में कम करने के लिए. इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसमें क्या है, बैलेंस बिटवीन बैलेंस अमंग द रूरल एरियाज एंड द अर्बन एरियाज. फिर कंट्रोल ऑफ एचआईवी केसेस कम करने के लिए मतलब फर्स्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया टू फाइंड आउट एचआईवी इन्फेक्शन केसेस कितना है वो फाइंड आउट करता था, एंड बाद में उनको डिफरेंट मेडिसिन देता था टू कंट्रोल दैट एचआईवी इन्फेक्शंस. अभी एट प्रेजेंट इंडिया में कितना केसेस है, 2.1 मिलियन केसेस एचआईवी इन्फेक्टेड केसेस इन इंडिया. उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम. उसका नाम दूसरा क्या है, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन मिशन इंद्रधनुष. इसमें क्या डिफरेंट वैक्सीनेशंस वर फ्री टू द चिल्ड्रन. मैंने अभी बता दिया कि आफ्टर दी डिलीवरी के बाद ना माँ के पास एक कार्ड रहेगा, आप देख लेना, आजू बाजू में कोई छोटा बच्चा रहेगा उनके पास में एक येलो कार्ड रहता है, मतलब ए महीने में इतना इंजेक्शन देना है, और नेक्स्ट आफ्टर 5 महीने के बाद इतना देना, कौन सा इंजेक्शन देना है, एवरीथिंग इज रेडी. चिकन पॉक्स के लिए, उसके लिए, इसके लिए अलग अलग रहेगा. अंडरस्टैंड? सो दैट इज द यूनिवर्सल वैक्सीनेशन. एंड द नेक्स्ट वन, 6th पॉइंट इज व्हाट, पल्स पोलियो प्रोग्राम. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड. किसके लिए? पहले जमाने में बहुत लोगों को होता था ये जो पोलियो केसेस बहुत ज्यादा था, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड पल्स पोलियो प्रोग्राम. इसकी वजह से क्या होता है मालूम है क्या, पॉपुलेशन अनहेल्थी हो जाता है, बराबर. दे कैन नॉट वर्क. तो पोलियो केसेस में क्या हो जाता है, लोग ना तो कुछ काम करने को होगा उनको, तो ये सब बर्डन है ना गवर्नमेंट के ऊपर. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड पल्स पोलियो प्रोग्राम. अंडरस्टैंड? एंड द चिल्ड्रन अप टू द 5 years वर कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम. कौन सा साल का बच्चे लोग इंक्लूड है इसमें? 5 साल के अंदर को जो बच्चे लोग है वो सब इसमें इंक्लूडेड है. इसलिए अपन देखा रहेगा अपने हर साल आते हैं ऐसा वर्कर्स, स्पेशली इवन अपन स्टूडेंट्स भी जाता है ना, हेल्प करते हैं ना सोसाइटी को, घर घर में जाता है और पोलियो डोसेस देता है. दैट इज एनएसएस में है लगता है वो. दैट इज पल्स पोलियो प्रोग्राम. एंड द 7th वन इज व्हाट, नेशनल लेप्रेसी प्रोग्राम. लेप्रेसी मालूम है क्या है? लेप्रेसी कोड का बीमारी बोलता है ना, हाथ सब ऐसे सिकुड़ जाता है, सब छोटा छोटा हो जाता है, उंगली सब काका के, कीड़ा काका के. दैट इज नोन एज लेप्रेसी. सो वो भी अनहेल्थी पॉपुलेशन है ना, लेप्रेसी रहेगा. तो पहले तुम लोग अगर देखा तो वितलवाड़ी स्टेशन का जो बाहर जो है उधर झोपड़े रहता था ना, उधर रहता था ये लोग ज्यादा, लेप्रेसी लोग. इवन वितलवाड़ी स्टेशन का स्टेप्स में भी रहता था. बिकॉज मुझे क्यों मालूम है कि मैं पहला उधर रहती थी वितलवाड़ी में, सो मैं देखा हुआ है. अंडरस्टैंड? अभी ऐसा नहीं, अभी वो एरिया में नहीं है लगता है ज्यादा ऐसा लेप्रेसी केसेस वगैरह. मतलब जो लेप्रेसी ठीक हो गया लोग रहते थे उधर, तो उनका हाथ वगैरह देखेगा तो थोड़ा पता चलता है अपने को ये लेप्रेसी इफेक्टेड है. अंडरस्टैंड? तो लेप्रेसी रेडिकेट, अभी आजकल मेडिसिन है लेप्रेसी वगैरह के लिए. पहले जमाने में नहीं था लेप्रेसी एंड ऑल, मेडिसिन ही नहीं था, तो उसकी वजह से लेप्रेसी केसेस बहुत ज्यादा होते थे. अभी क्या है, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस इंजेक्शंस, वैक्सीनेशंस फॉर ऑल दिस लेप्रेसी के लिए. अंडरस्टैंड? सो दैट प्रोग्राम हैज इंट्रोड्यूस्ड. दैट वाज द 7th वन. एंड द 8th वन व्हाट द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस का मीनिंग क्या मालूम है क्या बच्चों? जॉन्डिस पीलिया बोलते हैं ना बीमारी, तो उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस. 2 टाइप है उसमें, तो हेपेटाइटिस ए बी है, बी बी है, तो डेंजरस है हेपेटाइटिस. अंडरस्टैंड? तो उसका एम क्या था ये जो प्रोग्राम का, टू रिसर्च एंड सर्वे डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड टू फाइंड आउट इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री. ये जो हेपेटाइटिस का टाइप कौन से एरिया में ज्यादा है, कौन सा टाइप है, वो सब फाइंड आउट करना एंड उसके ऊपर रिसर्च करना. दैट इज दिस प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस. ओके, हेपेटाइटिस ए बी है, BBA बच्चों. So that was the 8th point. 9th one is what, national tobacco control program. वो भी अपन पढ़ते हैं. अभी आजकल गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट इंट्रोड्यूस किया ना, ऑल एवरी मूवी में ये एडवर्टाइजमेंट आता है, तंबाकू नहीं यूज करना है, टोबैको, उसका फोटोज डालता है, थ्रोट कैंसर का फोटो डालता है. दैट वाज गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2003 ऑल दीज एडवर्टाइजमेंट्स. किस लिए? टू कंट्रोल इट्स यूज. अंडरस्टैंड? टू कंट्रोल इट्स सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फॉलो दैट इज नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम. क्यों गवर्नमेंट ये सब इंट्रोड्यूस कर रहा है?
for the health care, because health care रहेगा तो ही family welfare होगा. Follow. Now 10th point is national health policy. It was introduced in the year 2017. Understand? And its aim is what? To encourage integrity and ethics in healthcare delivery, to promote equality among all classes of the society. Poor होने दो, rich होने दो, सबको equal facilities मिलना चाहिए. That is national health policy. That is the aim of the national health policy. Integrity. जो भी policies, जो भी programs introduce कर रहे हैं in the rural areas as well as in the urban areas, there should be integrity होना चाहिए. Integrity means unity. So both rural areas में भी urban areas में भी equally healthcare facilities मिलना चाहिए. Understand? That was that. These are the 10 programs that the government has introduced for the healthcare. So WHO defines what is health: physical, mental and social health. और among the India का position क्या है बच्चों? 145 among the 195 countries. And कौन है among all the countries in the world who is the top में? France है. इसके बाद इंडिया में कौन से स्टेट में ज्यादा है? केरला एंड गोवा. हेल्थ केयर फैसिलिटीज ज्यादा है और आसाम एंड उत्तर प्रदेश में बहुत कम है. एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स? फर्स्ट वन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज इंट्रोड्यूस. सेकंड क्या है? जननी सुरक्षा योजना, माँ के लिए, माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए. थर्ड, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. फोर्थ, वो किसके लिए? टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेस, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज दोनों में बैलेंस होना चाहिए, रूरल एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज. फोर्थ वन क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एड्स HIV केसेस को फाइंड आउट करने का और उसको कंट्रोल करने के लिए. नेक्स्ट वन क्या था? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन एज इंट्रोड्यूस्ड. उसका दूसरा नाम क्या है? द मिशन इंद्रधनुष. इस इंद्रधनुष में क्या है? चिल्ड्रन को फ्री वैक्सीनेशन. अंडरस्टैंड? ये मैंने अभी बताया ना बच्चों को, मम्मी के पास येलो कार्ड रहता है. इवन मेरे बच्चे छोटे तो मेरे पास भी था ऐसे येलो कार्ड. मतलब बच्चों को जाके वैक्सीनेशन लेना है. Understand? To protect from various diseases. Next one, pulse polio program. Pulse polio program was that it was the 6th one to complete the eradication of the polio from India, and children up to 5 years were covered under this program. And 7th point, national leprosy program to eradication. Leprosy के लिए भी अलग-अलग various programs the government has introduced. 8th point, national program on prevention and control of hepatitis. ये जो leprosy वगैरह जिधर रहता मालूम है क्या? ये जो unhealthy condition रहेगा, unhealthy environment, clean नहीं रहता है, वो सब एरिया में रहेगा तो अपने को डिफरेंट कीड़ा वगैरह अपने शरीर में आता है और खाता है बॉडी. दैट इज नॉट एज लेप्रोसी. ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड. पहले जमाने बहुत था, अभी कम हो गया है. नाउ 8th वन, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की वजह से वो दैट ऑल दिस थिंग्स वर रिड्यूस्ड. 8th वन क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस. जॉन्डिस का केसेस कम करने के लिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड रिसर्च एंड सर्वेस. कौन से एरिया में ज्यादा है हेपेटाइटिस A and B, कौन से एरिया में हेपेटाइटिस B है, to find out and to give different medicines for that. Next one, national tobacco control program was introduced. It was introduced in the year 2003 and the government has introduced various advertisement. movie में अपन देख रहे हैं, पता है ना, सिगरेट इंजूरियस टू हेल्थ है और डिफरेंट लेडीज को दिखाता है, जेंट्स को दिखाता है, थ्रोट में कैंसर होके. सो वो सब है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम. क्यों? लोगों के मन में अवेयरनेस करने के लिए कि ये यूज करेगा तो ये होने वाला है, टू कंट्रोल दैट. Understand? And the 10th point, national health policy, it was introduced in the year 2017 and its aim क्या है? To provide to encourage integrity in the facilities that given to the rural areas as well as to the urban areas. Next one, recent trends in healthcare system. अभी at present government क्या करते हैं healthcare system को के लिए? what the government is doing. The first one, medical tourist arrivals in India was increased by more than 50%. 50% more than लोग इंडिया में आता है. मेडिकल टूरिस्ट मतलब कि मेडिकल इसके लिए आता है. मेडिकल टूरिस्ट मतलब जो भी बीमारी वगैरह आएगा तो इंडिया में फैसिलिटीज रहेगा तो लोग दूर देश से भी इंडिया में आते हैं. सो इट हैज इंक्रीज्ड बाय मोर देन 50% इंक्रीज हो गया. एंड बाय 2020 द हेल्थ केयर मार्केट इज एक्सपेक्टेड CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 16.5% हुआ अपना बाय 2020 में हेल्थ केयर. अंडरस्टैंड? 16.5% इंक्रीज हुआ है. एंड नेक्स्ट वन, टोटल ऑफ 3,598 हॉस्पिटल्स इंट्रोड्यूस किया है
है, इंक्रीज हुआ है, एंड इतना कितना है वो 25723 डिस्पेंसरीज वर इंट्रोड्यूस्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरा बढ़ रहे, डिस्पेंसरीज भी बढ़ गया, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स भी इंक्रीज हुआ. एंड नाउ इन 2017 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड ग्रांट देने लगा, किसके लिए, आयुष. आयुष मतलब क्या है मालूम है क्या, और कुछ नहीं है, नाम नहीं है. आयुष मीन्स आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, दैट इज नॉन एज आयुष. ठीक है, आयुर्वेदा यू नो, योगा यू नो, यूनानी मीन्स व्हाट यू नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिद्धा. सिद्धा मतलब जड़ी बूटी, यूनानी मतलब ये जो स्पिरिचुअल थिंग्स है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में बैठते तो सब बीमारी दूर जाता है, मेडिटेशन करो, ऐसा सब, दैट इज यूनानी. एंड होम्योपैथी यू नो, दैट यू नो, होम्योपैथी में क्या हो जाता है, अलग अलग मिनरल्स यूज करते हैं, अंडरस्टैंड, मिनरल्स वगैरह यूज करते हैं, उस दैट इज नॉन एज होम्योपैथी, दैट इज नॉन एज आयुष. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has provided ग्रांट ज्यादा देने लगा आयुष के लिए. एंड नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट क्या किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड. फॉरेन डायरेक्ट मतलब फॉरेनर्स के इन्वेस्टमेंट इंडिया में हॉस्पिटल में और डायग्नोस्टिक सेंटर में बढ़ गया, दैट इज 1.45 बिलियन US डॉलर तक बढ़ गया. अंडरस्टैंड, ये सब अचीवमेंट है इंडिया का इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. एंड सिक्स्थ पॉइंट क्या है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स भी बढ़ गया, मेडिसिन, उसमें भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा. दैट मीन्स इंक्रीज टू कितना है, 14490.21 मिलियन US डॉलर, फॉलोड, उतना बढ़ गया है. सो development is there in drugs and pharmaceutical medicines. Next one, telemedicine is used to connect remote rural population to get medical service from the specialist, advice from the specialist. Telemedicine program introduce किया, क्योंकि जो rural areas में रहता है उनको hospital facilities नहीं रहता है, तो they can call, अंडरस्टैंड, कॉल करके पूछ सकते हैं स्पेशलिस्ट को, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, उनको पूछ सकता है एडवाइस, क्या करने का है, मुझे ऐसा फीवर हो रहा है या नहीं, तो मेरे बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं आगे क्या करना है, तो उसके लिए एडवाइस देते हैं लोग, स्पेशलिस्ट लोग. सो दैट इज नॉट एज टेलीमेडिसिन प्रोग्राम. ओके, ये सब क्या है पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्या अचीवमेंट हुआ गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का अचीवमेंट कितना तक लेवल में हो गया है. नेक्स्ट वन, पेशेंट रिमोट मॉनिटरिंग. रिमोट रहेगा मतलब वी कैन कंट्रोल, मॉनिटरिंग मतलब कंट्रोलिंग. अभी पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसके बाद डिस्चार्ज हो गया, तो उनको ऊपर एक ऑब्जर्वेशन, उनको ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, वो पेशेंट को अपन मॉनिटर कर सकता है, मतलब क्या, रोबोट का वो जैसे मॉनिटर लेके बैठने का नहीं, उनको बुलाता रहता है ना, तुम आप लोग को मालूम रहेगा, इतना 1 महीने के बाद आओ, दैट मीन्स मॉनिटरिंग, कैसा कंडीशन है देखने के लिए. डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट को बुलाता है डॉक्टर्स, क्योंकि उनको देखना है कैसा कंडीशन है, इसके बाद ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट है क्या पेशेंट को, वो सब देखने के लिए, दैट इज नॉन एज पेशेंट रिमोट मॉनिटरिंग. तो 8 अचीवमेंट्स है इंडिया का, अंडरस्टैंड. इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किया, इसमें कितना अचीवमेंट हुआ. So that is, these are the 8 points. What are the medical tourist arrivals increase हो गया, health care market का compound annual growth rate बढ़ गया, बराबर है ना, कितना हुआ 16.5%. एंड थर्ड पॉइंट क्या है, हॉस्पिटल का नंबर इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट का इंडिया आयुष के लिए गवर्नमेंट ज्यादा मनी देने लगा, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, किसमें, हॉस्पिटल्स में एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में. एंड नेक्स्ट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में भी बढ़ गया है. एंड नेक्स्ट वन, टेलीमेडिसिन इंट्रोड्यूस किया प्रोग्राम, किसके लिए, कनेक्ट रिमोट रूरल पॉपुलेशन, रिमोट एरिया में उधर कुछ भी फैसिलिटीज नहीं रहता है, उनको क्या अचानक कुछ हो गया, सो दे कैन कॉल फ्रॉम दी, they can call and ask advice from the specialist, बराबर. एंड नेक्स्ट वन, पेशेंट रिमोट मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट को ऑब्जर्व करना, मतलब आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद भी आप लोग आओ, आफ्टर 1 month के बाद आने का एंड चेकअप करना है, दैट इज नोन एज पेशेंट रिमोट मॉनिटरिंग. These are the achievements of the Indian government in the healthcare facilities. Now we are going to study what we are going to study, you know, recent trends in India's education system. इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डेवलपमेंट हुआ. फर्स्ट वन, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट एट प्रेजेंट, करंटली अभी जो है सब्जेक्ट वाइज लर्निंग इंट्रोड्यूस किया. It have been passed related to class wise and subject wise learning in languages, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एक्सेट्रा. कंपल्सरी एजुकेशन कर दिया, मतलब ऐसे स्कूल में है ना
इंग्लिश हिंदी मराठी होना चाहिए, ऐसा मुस्लिम स्कूल्स रहेगा तो इंग्लिश हिंदी उर्दू होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी किया, दैट इज सब्जेक्ट वाइज लर्निंग। एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए, ईवीएस होना चाहिए, साइंस एंड सोशल साइंस। नेक्स्ट वन व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस। सेकंड वन क्या है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे वाज कंडक्टेड, इट हैज कंडक्टेड, किसके लिए सर्वे क्या किया है, क्लासेस के लिए, कौन सा क्लासेस के लिए, थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, और नवंबर 13 2017 टू फाइंड आउट डिफेक्ट्स, एनी डिफेक्ट्स है क्या उनका लर्निंग में, वो फाइंड आउट करने के लिए सर्वे इंट्रोड्यूस किया। इन इवेंट सर्वे इसमें भी लिया क्लास 10th में, कभी 2018, ईच डिस्ट्रिक्ट, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, और उन लोग को फीडबैक देना चाहिए गवर्नमेंट को, एंड फीडबैक देने के बाद स्टेप्स लेना पड़ेगा टू रिमूव डिफेक्ट्स, टू एंड टू इम्प्रूव द डिफेक्ट्स एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। अंडरस्टैंड। नाउ थर्ड पॉइंट इज क्या, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स फिक्स किया। व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन, दैट इज मतलब क्या, क्या डीएड कोर्स होना चाहिए, बीएड कोर्स होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अनट्रेन्ड प्राइमरी टीचर्स को डीएड कंपलसरी किया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल एक्सपोजर। Government of India has decided to participate in the program for International Student Assessment, PISA. What is a International Student Assessment to be conducted by Organization for Economic Cooperation and Development in 2021. उसमें participate करने का वो program introduce किया internationally अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, that is known as International Students Assessment to be conducted. Next one, fifth point is cultural festivals introduce किया at present. Rangolotsav December 7 to 21 2008 in schools में ये रंगोत्सव इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड, कल्चरल फेस्टिवल्स, क्योंकि अपने को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड टू नो अबाउट वेरियस कल्चर्स। अंडरस्टैंड, तो कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए, वेरियस कल्चर, साउथ का कल्चर क्या है, नॉर्थ का कल्चर क्या है, इसके लिए कल्चरल फेस्टिवल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। दैट उसका नाम है रंगोत्सव। किधर इंट्रोड्यूस किया, स्कूल्स में, कभी 2018 में, December 7 to 21। नेक्स्ट वन क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली इवेल्युएट कैसा सक्सेस हो रहा है, बच्चों का एजुकेशन कैसा चल रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ग्रेडिंग सिस्टम इन स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीएस, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट में भी यूनियन टेरिटरीज में, अंडरस्टैंड, टेरिटरीज में भी इंट्रोड्यूस किया। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज व्हाट, e-learning material for teachers and students in order to upgrade the skills of teachers, in order to upgrade matlab improve the skills of the teachers, MHRD has developed क्या है, dedicated digital infrastructure for knowledge sharing platform, मतलब digital infrastructure फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, मतलब इसके लिए अपग्रेड द स्किल्स, इसके लिए तो ऑनलाइन टीचिंग सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, टू इम्प्रूव द टीचर्स का, इम्प्रूव दी उनका क्या बोलते हैं टेक्निक्स, कैसे उन लोग पढ़ा सकते हैं क्या, नॉलेज, ई लर्निंग मटेरियल्स, अंडरस्टैंड, फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज ओनली गोइंग ऑन नाउ, ऑनलाइन टीचिंग। नाउ नेक्स्ट वन, 8th पॉइंट क्या किया गवर्नमेंट ने, इंट्रोड्यूस किया है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, किसके लिए, to motivate the children, to encourage, motivate means क्या है बच्चों, to encourage the children of the age group of 6 to 18 years in science, mathematics, model building, etc. ये सब इस फील्ड में encouragement देने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान has introduced in the year 2015. Understand? That was the 8th one. 9th one is massive मतलब क्या है, पूरा बहुत ज्यादा ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया, हैज इंट्रोड्यूस्ड स्वयं मतलब क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ऑन July 9 2017 has introduced, स्वयं has introduced study web of active learning for young aspiring minds, मतलब young minds, aspiring मतलब क्या, always curiosity रहता है ना बच्चों को, that is young बच्चों के लिए, young students मतलब for you all, स्वयं has introduced on July
9, 2017. So these are the recent measures that the government has introduced. ये सब text book में नहीं है. This I am giving outside. Understand? Current things है ये. This you have to write. Suppose the government, the question is coming about education. Currently what the government is providing. Apart from the पुराना method, उसके बाद ये पूरा लिखना है बच्चों. Education का field में भी government क्या success हुआ है and even health का field में भी. Understand? So all these are the now the infrastructure lesson is over. Followed all of you. Second lesson is over. Today is the last. So whenever we think about social infrastructure, that is the second lesson. First lesson क्या था? New economic policy 1991. तो मॉड्यूल का 2 लेसन्स कंप्लीट हुआ है. ये दोनों का नोट्स मैं दूंगी कंप्लीटली. फर्स्ट लेसन का तो ऑलरेडी दे दिया है, अभी सेकंड का पूरा दे दूंगी. ओके, तो देन वी विल स्टार्ट द न्यू लेसन next day. Okay, next lecture. So social infrastructure, when we will say what are they? Education Act. And what is coming? Education भी आ रहा है and health care and family welfare. उसके बाद WHO का definition and all, you know, and what are the features of that? Efficient utilization, productive efficiency, then what are the efficient utilization, productive efficiency, and what are those 2 or more points are there? Quality, like quality of life, high standard of living, etc. For all these, social infrastructure is very much needed. And after that, education का role आने लगा. Education is very very important because education नहीं रहेगा then human development nahi hoga. When there is human development, then only social and economic development will take place. So education is very very important. Understand? And what are the education programs that the government has introduced? We studied the old programs already जो है वो सब हम लोग ने पढ़ लिया है. And after that, what is coming? The Kothari Commission, we studied vocational education. Government क्या किया? Kasturba Gandhi education facilities for the girls, Balika Vidyalaya has introduced, and minorities के लिए government has introduced so many programs, and SC ST and OBC बच्चों के लिए भी government बहुत सारे introduce किया. ये सब पढ़ने के बाद when the question is coming about the education, then you have to write the recent measures. कितना है वो? Recently the government has introduced 7 points, ना? 7 no, not 7, 9 points. Yeah, 9 points भी you have to write. Understand? When suppose the question is coming for the exam, then they will come to know that current topic also you know, so that is good for you. That's why I added this 9 points. Followed? And after that, health has come. Health is very important because if there is health care is there, then only the family welfare will be there. If health is not proper, then family welfare will not be there. Understand? And health में हम लोग क्या पढ़ा है? WHO क्या बोला? Health physical, social and mental health होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ physical होएगा तो that is not health, या सिर्फ mental होएगा तो that is not health. ये तीनों health होना चाहिए. Then only we can say that a person is healthy person. Understand? And उसमें क्या क्या चाहिए health के लिए? We studied already that अपना position is very important. 145th position है. Understand? Among all the countries, and the top position में कौन है? France है. और इंडिया में कौन सा स्टेट आगे है हेल्थ केयर में? केरला एंड गोवा. एंड पीछे कौन है? उत्तर प्रदेश एंड असम. एंड गवर्नमेंट कितना कितना प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया हेल्थ केयर के लिए. दैट ऑल्सो वी स्टडीड व्हाट आर द हेल्थ प्रोग्राम्स. जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, फिर क्या व्हाट आर द आशा हैज इंट्रोड्यूस्ड, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हैज introduced, and monitoring facilities for the discharge करेगा तो पेशेंट को. और उसके बाद वो जो नया जो चीज है गवर्नमेंट has introduced, everything कितना पॉइंट्स था वो मालूम है? नॉलेज हेल्थ के लिए मैंने दिया था न्यू पॉइंट्स. हेल्थ केयर के लिए रिसेंट ट्रेंड्स इन हेल्थ केयर 8 पॉइंट्स, बराबर ना? दैट यू हैव टू राइट. आयुष मतलब आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी. इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारा खर्च कर रहा है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया इंडिया में. ये सब अचीवमेंट है हेल्थ का. एवरीथिंग you have to write. So completely the second lesson is over. That what was the name of the lesson? Social infrastructure. Okay. आई थिंक दैट आप लोग को सब समझ में आया मुझे लग रहा है बच्चों. अगर डाउट है तो ओपनली यू कैन कॉल एंड आस्क मी द डाउट. ओके, एंड राइट डाउन द नोट्स. आराम से पूरा होने के बाद, पूरा मिलने के बाद, टाइम है, पीडीएफ मेरा उधर ही पड़ा रहेगा, उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना नोट्स के ऊपर. ओके, आराम से लिख के लो, अंडरलाइन करो द पॉइंट्स, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.